मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। एक बार फिर से गारोई नदी पर किए गए तामीर के मामले ने पकड़ा तूल। इसे गैर कानूनी बताते हुए आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस नेता मोहम्मद शाकिर ने कहा कि गारोई नदी पर कब्जा करके यहां मैरिज हॉल, लाइब्रेरी, फ्लैट की तामीर की गई है, जो कि गलत है और इसी तामीर की वजह कर यहाँ कई मसले होते रहते हैं। इन्होंने मजीद बताते हुए कहा कि खासकर टीएमसी के नेता और काउंसलरों ने ही यहाँ पर गैर कानूनी तामीर कर रखा है। आपको बता दें कि इन्होंने आज बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को डेपुटेशन सौंपा है। काफी तादाद में कांग्रेस कमेटी की जानिब से लोग डेपुटेशन देने पहुंचे तो इनके हाथों में बोर्ड्स देखे गए, जिस पर तस्वीर दिखाते हुए साफ साफ अल्फाजों में लिखा गया कि अवैध मैरिज हॉल तोड़ने होगा और साथ ही साथ लाइब्रेरी को लेकर भी लिखा गया कि लाइब्रेरी का नाम पर जमीन दखल नहीं चलेगा। इस मौके पर प्रसन्नजीत पोतिंडी, शाह आलम खान वगैरह मौजूद थे। নেতৃত্বে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের যে চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাকিরের নেতৃত্বে এসেছি বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারম্যানের কাছে। আমরা জানাতে এসেছি যে আসানসোলের একটা 20 থেকে 22 বছরের পুরনো সমস্যা হচ্ছে গারুই নদী এক রাত্রের বর্ষাতে ভেসে যাওয়া। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আপনারা জানেন বিগত 1.5 বছর ধরে আমরা গারুই নদী সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আমরা ওখানকার মানুষের সই সংগ্রহ করে ডিএমকে পর্যন্ত দিয়েছি, কিন্তু দেখা যায় প্রতি বছর বর্ষা হলে একটা মেশিন নামিয়ে 2-4 দিন কাজ করে মানুষের মন ধুয়ে দেওয়া। এই যে অবৈধভাবে তৃণমূল কাউন্সিলররা কেউ ফ্ল্যাট তৈরি করছে, কেউ ম্যারেজ হল তৈরি করছে, কেউ ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির নামে সরকারি টাকাতে ওই জমিতে বানাচ্ছে, কিন্তু সেই ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এখনও পর্যন্ত একটা বোর্ড পর্যন্ত লাগেনি। সেগুলো পার্টি অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং নদীর ধারে একটার পর একটা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস গড়ে উঠছে নদীর জমি। সরকার নদী সংস্কারের নামে এক দিন মানুষকে দেখায়, কিন্তু নদীর আসল সংস্কার হচ্ছে এই অবৈধভাবে, যে এই দেখুন জল, এই দেখুন ম্যারেজ হল, এটা তৃণমূলের একজন কাউন্সিলরের। এই আরেকটা দেখুন, এটাও তৃণমূলের আরেক 28 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি কাউন্সিলর আছেন তার সংরক্ষণে আছে। এটা পার্টি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এখানে একটা বোর্ড পর্যন্ত নেই। সরকারি টাকায় এটা তৈরি হয়েছে। মানুষের টাকায় তৈরি হওয়া সম্পত্তিকে পার্টি অফিস হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা রেলপারে ব্যবহার করছে। আর ভোটের সময় রেলপারের মানুষের ভোট নিয়ে কেউ এখানে বসছেন, কেউ মন্ত্রিসভায় যাচ্ছেন। তাহলে মানুষ যখন বর্ষার জলে, জানেন কয়েকদিন আগে একটা ছেলে মারা গেছে, এক রাত্রের বৃষ্টিতে বন্যা হয়ে গেছে। প্রতি বছর এই অবস্থায় কারোর না কারোর মৃত্যু হচ্ছে। আমরা অবিলম্বে আমরা শুনেছি কর্পোরেশন নাকি একটা গঠন করেছে তদন্ত কমিটি, যেগুলো অবৈধ কনস্ট্রাকশন আছে সেই অবৈধ কনস্ট্রাকশন দেখার জন্য। এবং আসানসোলের মানুষের একটা দাবি, এই দেখুন আনন্দবাজার পেপারের একটা দাবি আমার কাছে আছে। একটা তদন্ত মানুষ সমীক্ষা করেছিল যে মানুষ 100% মানুষ বলছে গারুই নদীর দুপাশে অবৈধ দখলদারি হাটিয়ে সংস্কার হওয়া উচিত। তাহলে আমরা মানুষের দাবি নিয়ে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে জানাতে এসেছি যে অবিলম্বে গারুই নদী যখন সংস্কারের আপনার তদন্ত কমিটি যাবে, তৃণমূল নেতাদের বলে এই প্রপার্টিগুলোকে, কারো ফ্ল্যাট আছে, কারো ম্যারেজ হল আছে, কারো লাইব্রেরির নামে দখল করে রেখেছে বা বিভিন্ন পার্টি অফিস, এগুলো যেন ছাড় দেওয়া না হয়। অবিলম্বে যেভাবে বিগত দিনে দেখেছি একটা ব্রিজ আপনারা ভেঙেছেন, এগুলোকেও ভাঙতে হবে এবং নদী সংস্কার করে আগামী দিনে যেন রেলপার সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল না ডুবে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা এই দাবি নিয়ে আজকে। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिपोजिशन दिए हैं। डिपोजिशन देने का लफड़ाव ये है कि 22 नंबर वार्ड से लेकर 29 नंबर वार्ड तक जिस तरह से गरुई रिवर के ऊपर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसमें कहीं कहीं पे फ्लैट बना हुआ है, कहीं मैरिज हॉल बना हुआ है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के नाम पर वहाँ पे किसी का निजी प्रॉपर्टी चल रहा है और वहाँ पे पार्किंग हो रहा है। इसी के खिलाफ में खास करके टीएमसी के लीडर, टीएमसी के काउंसिलर लोग भी नदी के ज़मीन कब्जा करके इस तरह का ये किया है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर डिपोजिशन दिए हैं।
उसी तरह से वार्ड नंबर 28 में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है फजलुल बीच के पास, जो पिछला साल जो है सरकार के पैसे से बना है, लेकिन अफसोस कि वहाँ पर एक बोर्ड तक नहीं लगा है और उसको जो है जल्द से जल्द ओपनिंग करने की मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन दिए हैं और चेयरमैन साहब को हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से अवैध रूप से वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, टीएमसी के लीडर लोग पार्टी ऑफिस से लेकर के बहुत तरह का चीज़ वहाँ पर बनाए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उस पर एक्शन हो। और यहाँ पर जो बोर्ड की ओर से यहाँ पर जिस तरह से एक कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी जो है जाँच करेगी। चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जाँच हो, जांच के बाद जो सटीक ये हो जायज़ रूप से जो है उस पर कार्रवाई हो। और वहाँ पे पानी का पीने का मसला है, इसको लेकर के भी हम लोग यहाँ पे 25 नंबर 26 नंबर 28 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, इसलिए हम लोग ये दे रहे हैं। और ठीक उसी तरह से वार्ड नंबर 28 में एक माइनॉरिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल है। कम्युनिटी हॉल में बहुत सारे लोग अपना जो है ज़रूरत के तहत शादी ब्याह के मौका पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका चाबी होना चाहिए कब्रिस्तान कमेटी के पास। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहाँ पे काउंसलर जो है खुद अपने पास होता है, इसलिए उस सबको लेकर के इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन दिए हैं। और आने वाले दिनों में रेड पार्क का जो जरूरी रिवर है, जिस तरह से दिन ब दिन उस पर कब्जा होता जा रहा है, जिससे आए दिन वहाँ पे बड़ा हादसा होता है। पिछले महीना में ही जो है एक लड़के का जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए उचित कार्रवाई होना चाहिए। यही को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्टी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। देखिए, जातीय कांग्रेस का तरफ से आया डेपुटेशन देने के लिए। वो जो इलीगल मैरिज हॉल है, अरे हम लोग को एक तो लाइब्रेरी वहाँ पर हुआ है, हम लोग को इतना जानकारी नहीं है, आगे बोर्ड में हुआ था तो सब के बारे में आया था, तो हम लोग देखेगा। उन लोगों को बोला है जैसे कि हम लोग पता करके 10 दिन बाद उन लोगों को आने के लिए बुलाया, जो 10 दिन में हम लोग पता करके सब जानकारी करेंगे। बर्नपुर के वागन कॉलोनी के बाशिंदे इन दिनों पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। कल ही इसी सिलसिले को लेकर बर्न स्टैंडर्ड कारखाने के सामने एहतजाज किया गया था। आज साबिक काउंसलर मिनल मंडल और आशीष बाग और मकामी लोगों पर मुश्तमिल एक टीम आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को डेपुटेशन सौंपा। मिलन मंडल ने जानकारी देते हुए कहा, যাতে জলটা না পায়। আসানসোল কর্পোরেশনে এরকম অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া মানে খুবই মানুষগুলো বেঁচে যায়। পাইপলাইনের আমাদের যে ইয়েটা আছে, পাইপলাইন কিছুটা এসছে, এখান থেকে 700-800 মিটার মতন পাইপলাইনের ব্যবস্থা করা হবে। সেসব ব্যবস্থা হবে না, তো আগে দেখো ওখানে যে রেল কি করছে। আমি দাদা সবার সামনে বলছি, আজকে ওখানকার দায়িত্ব প্রথমে এসেছিলেন, আজকে আমার খুব জানাশোনা। উনি বললেন যে দেখো ইলেকট্রা কোনো ডিস্টার্ব করে, যখন রেলের দরকার ডিস্টার্ব করে, আর এবং যারা অকুপাই করে মানে যাদের আমরা আমাদের অভিভাবক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে আমরা দেখা করে ওনাকে জানালাম আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি আমাদের বান স্ট্যান্ডার্ড কলোনিবাসী। আজকে 3-4 দিন ধরে লাইট এবং জল কেটে দেওয়া হয়েছে, এবং গতকাল যদিও জলটা চালু করার ব্যবস্থা করেছিলাম, যে 2জন ভাল্ব খুলেছিল আজকে বদমাইশি করে, এবং আমার তো মনে হয় এটা আমাদের এমএলএ নির্দেশে 2জনকে অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশে আমাদের 2জন কর্মী যারা জল খুলতো বান স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির তরফ থেকে, সেই জল যারা খুলতো তাদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমি আজকে যা জানলাম সেটাই বললাম, এবং আমি কর্পোরেশনে এসে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম যাতে অভিভাবক হিসেবে আমাদের আর মাথার ওপর কেউ নেই, অভিভাবক হিসেবে উনি লাইট এবং জলের ব্যবস্থা করে দেয়। উনি আমাদের বলেছেন যে আমরা সচেষ্ট থাকব যে যত জলদি জল এবং লাইটের ব্যবস্থা করা যায়। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को अरदाश्त सौंपी गई है। कमेटी के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आज हम लोग बर्नपुर गुरुद्वारा स्कूल की इमारत की मुरम्मत और स्कूल इंतजामिया से मुतल्लिक अमरनाथ चटर्जी से बात करेंगे।
सुरेंद्र सिंह ने साबिक प्रधान चरणजीत सिंह पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 1971 से तामीर स्कूल इंतजामिया में गुरुद्वारा प्रबंधक के 2 अरकान शामिल हुआ करते थे, पर 2011 से ऐसा नहीं हो रहा है। आज आए थे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब के पास, श्री अमरनाथ चटर्जी के पास। उनसे जो हमारी गुरुद्वारा बिल्डिंग की जो जर्जर अवस्था है उसको लेकर हम लोग अपना जो कंप्लेन लेटर देने आए थे कि आज हमारी बिल्डिंग के अंदर में हमने एक स्कूल दिया था चलाने के लिए 1971 में जो स्कूल अथॉरिटी के साथ में हमारा गुरुद्वारा बनपुर के साथ में एक एग्रीमेंट है। नियम के अनुसार जब से स्कूल वहाँ पर हम लोग चल रहा है तब से हमारे कमेटी के 2 बंदे उस कमेटी में रहते थे जो स्कूल चलाने में, स्कूल अथॉरिटी का संचालन करने में साथ में मदद करते थे और पोस्टेड भी रहते थे। लेकिन 2011-12 में चरणजीत सिंह जब प्रधान बने गुरुद्वारा बनपुर के, उन्होंने अपने तरीके से वो जो एग्रीमेंट को भंग करके और एग्रीमेंट को भी गमन कर दिया है। इसके लेके भी हम अपने अमरनाथ चटर्जी के पास अपनी दरख्वास्त रखी है कि जो नियम था पुराना, जो नियम को फिर से लागू किया जाए। और सबसे बड़ी जो समस्या है इस टाइम, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जो हमारे बिल्डिंग की कंडीशन आज इस तरह से वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। करीब 2300-2400 बच्चे उस स्कूल में आज विद्या हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल की मैनेजमेंट है वो पूरी तरह सोई हुई है। पूरे इस बिल्डिंग में जगह जगह में दरार पड़ चुकी है, छत में पानी डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से पूरा गुरुद्वारा की बिल्डिंग ख़राब हो रही है और हमें इस गुरुद्वारा चलाने में काफ़ी जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी एएमसी डिपार्टमेंट इसके ऊपर में एक इंक्वायरी बैठाए और इसका जो सही निर्णय है एक निकाल के जो है निर्णय लेके उस पर इंक्वायरी बैठाएगा। जो भी दोषी है उसको एक पनिशमेंट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो फंड इस तरह से मिसयूज हुआ है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हीरापुर पुलिस की जानिब से लोगों में बेदारी लाने की गर्ज से मास्क तकसीम किया गया। हीरापुर थाने के अफसर इंचार्ज प्रसन्नजीत राय की क़यादत में राहगीरों, टोटो, ऑटो चालकों को मास्क पहनाया गया। नहीं जानता, चलिए अब দোকানদার এরকম যদি কোনো থাকে আমাকে 4 খানা সেট করবে, একদম 4 খানা, 4 জায়গায় 5 হবে, ঠিক আছে? দাদা ছবি তুলে নেন, দাদা একটু ওয়েট করুন।
नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।